بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کی شروعات کب سے ہوئی؟ سب سے پہلا روزہ دنیا میں کب رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ یہ جاننا ہر مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اب اپنے اختتام پر ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کے ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس امت پر کس طرح روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ ناظرین، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسعت یعنی رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ و مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا، چنانچہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
तमाम अम्बिया और फिर इमामुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसा कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े के हालतों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ान मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान और मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुन्नवरा में फ़र्ज हुए। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत या सफ़र की हालत में उसके रोज़े छूट जाते हैं तो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। इसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़े रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है तो इसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। नाज़रीन, ये भी जान लेते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं की तारीख को उम्मत रोज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फ़िरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुंदर से रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखा करो। यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोज़े हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थे। मुसलमान इस दिन रोज़ा रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ान मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज किया गया तब इन रोज़ों को सुन्नत रोज़े का दर्जा दे दिया गया। नाज़रीन, रमज़ान के महीने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाज़े पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते। और जब इस महीने की आखिरी तारीख आती है तो अल्लाह पाक हर रोज़ेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। नाज़रीन, रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं, क्या आप जानते हैं? यूँ तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोज़ा रखिए, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं आप इसको सोच नहीं सकते। और आज के ज़माने में जब साइंस की तालीम बहुत आगे है और वो नई नई चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इन साइंसदानों ने रोज़े के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फ़ायदे आपको बताएंगे कि रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का मानना है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रोज़ा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि शख्स रोज़े में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है इतनी ज़रूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। नंबर 3, जो रोज़ेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, जिसमें बदन की चर्बी पिघलती है। यानी हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी वर्जिश करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, सैर करते हैं, दौड़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक में जब हम रोज़े से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म से ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है। इंसान के जिस्म में जो गिलास अंदर मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं।
नंबर 4, रोज़ा रखने वाले के पट्टों में मजबूती होती है, यानी इसके पट्टों में ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए हुजूर पाक ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोज़ा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कितना बदलाव आ जाता है। ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव हमारे जिस्म में नहीं आ पाता। 5वां फ़ायदा इसका ये है कि निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है, सीधा सीधा उसका असर जिगर और दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोज़ेदार के लिए यानी जो रोज़ा रखता है उसके लिए फेफड़े बराह रास्त खून को साफ करते हैं, और जब रोज़ेदार रोज़े से होते तब हमारे फेफड़ा खून को साफ करता है, इसमें खून जम जाता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है, और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है। तो इस तरह वो जमा हुआ खून दिल को साफ कर देता है, यानी रोज़ा रखने की वजह से हमारे फेफड़े साफ हो जाते हैं। नंबर 7, खून में ग़िज़ाई मादा कम हो जाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खून में ग़िज़ाई मादे कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है, तो वो गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है, और जब गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को क़ुव्वत मिलती है, इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है, और इसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। किस तरह? यानी जब हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तकरीबन हमने 7 फ़ायदे आपको बता दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें बुराइयों से दूर रखे, और हमारे सभी गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाक।